So this is a very important topic and debate, basic economic problem कि बुनियादी तौर पर माशी पेचीदगियां क्या हैं या माशी पेचीदगियां कैसे जन्म लेती हैं. In Islamic economic, Muslims do believe in the proper distribution of wealth. As you know now, the basic difference between the proper distribution of wealth and the equal distribution of wealth. In socialism, the basic principle which is adopted during distribution of wealth is the equal distribution of wealth. While Islam wants to distribute income according to the capabilities of people, लोगों में जितनी इस्तेदाद और जितनी सलाहियत है उसी के एतबार से उनमें इस दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, न कि दौलत की मसावियाना तकसीम हो. And this will be a separate topic which will be discussed in the upcoming modules. Right now, what you should understand first, that there is a difference between proper distribution of income and the equal distribution of income. And what you must know is about the basic stand of Islam, that it promotes the proper distribution of wealth, not the equal distribution of wealth. So proper distribution of wealth means the earning opportunities for individual or any organization according to the capabilities. Means if we discuss individually or we discuss it on collective level, on mass level, so it should be, or wealth should be divided according to the capability of an individual or according to the capability of the organization. Allah has placed limited resources with unlimited problems and challenges in this world to test the human being. So now look at this matter. What is the fact? What is the reality? The reality is this, that Allah has placed limited resources with unlimited problems. कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की जहाँ ख्वाहिशात लामहदूद रखी हैं, वहाँ पर उन ख्वाहिशात, उन लामहदूद ख्वाहिशात के हुसूल के लिए जो वसाइल हैं वो लिमिटेड रखे हैं. एंड व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड इट, कि मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम हों तो इससे फिलॉसफी क्या सामने आती है. So handling economic issues, people are really tested during the allocation of the resources. Why allocation of the resources is important? Because your wants are unlimited while the resources are limited. That's why Islam says that one should have to prepare the priority list, and then according to the list he or she has to apply the resources or to allocate the resources for the achievement of their wants and need. This is the philosophy. What Allah says, Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. क्या ये लोग गुमान करते हैं अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि इन्हें छोड़ दिया जाए सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और फिर इन्हें टेस्ट ना किया जाए. यानी जब एक मोमिन ये कहता है कि मैं ईमान ले आया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे टेस्ट करते हैं, उसकी आजमाइश होती है. यकीनन आजमाइश तो उसी वक्त मुमकिन होगी कि जब अपनी ख्वाहिशात, और या आप यूं कहें कि अपनी लामहदूद ख्वाहिशात के हुसूल के लिए आपके पास जो वसाइल हैं जिन्हें आपने बरूएकार लाना है वो वसाइल महदूद हैं. इसलिए अगर मामला इसके बरक्स हो कि ख्वाहिशात जैसे लामहदूद हों, इसी तरीके से उनके हुसूल के लिए जो वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे वो भी लामहदूद हो जाएं, तो फिर इसमें आजमाइश तो नहीं है. इसलिए कि एवरीवन विल फील इजी, कि जब मुमकिन हो, जैसे मुमकिन हो, वो अपनी ख्वाहिश को हासिल कर लेगा. तो ख्वाहिशात जहाँ लामहदूद अल्लाह तबारक व ताला ने रखी हैं, जिन्हें मैं मसाइल से ताबीर कर रहा हूँ कि इस दुनिया में मसाइल ज़्यादा, चैलेंजेस ज़्यादा, मगर जो वसाइल हैं वो कम हैं. और इसकी फ़िलॉसफी ये है
कि एक मोमिन को टेस्ट किया जाए कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए सब्र, शुक्र और क़नात को फॉलो करते हुए, इन उसूलों को फॉलो करते हुए किस तरह से अपनी ख्वाहिशात का हुसूल करेगा। सो दे आर सपोज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हलाल एंड हराम, यानी इन ख्वाहिशात में आपने इसका भी तयन करना है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। ऐसा ना हो कि आप हलाल और हराम की परवाह किए बगैर वो तमाम ख्वाहिशात जो आपके दिल और दिमाग में आए उनका हुसूल शुरू कर लें। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट अल्लाह हैज प्रोवाइडेड लिमिटेड प्रोविजन टू सम पीपल while others are provided with enriched and enough resources. And this is the evidence. What Allah says, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. See they not that Allah enlarges the provision to whomsoever He pleases and straightens it to whomsoever He pleases. And that truly are signs for a people who believe. यानी अल्लाह तबारक व ताला जिसके लिए चाहता है तो रिस्क को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है रिस्क को कम कर देता है। और इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, और इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। यानी दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जिनको अल्लाह तबारक व ताला ज्यादा देता है तो उनका इम्तिहान उस ज्यादा रिस्क के साथ होता है, और जिनको अल्लाह तबारक व ताला कम देता है तो उनका इम्तिहान उस कमी के साथ होता है। ज्यादा वालों का इम्तिहान तो ऑब्वियस है कि वो ज़कात भी देंगे, अब भी ज्यादा है तो इससे आगे बढ़कर सदक़ात, खैरात और इन्फाक की हर किस्म यहाँ पर शामिल होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन वो गुनहगार होंगे। और जिनका रिज़्क़ अल्लाह तबारक व ताला ने कम किया है तो उनकी आजमाइश इस तरह होगी कि वो सब्र करते हैं या नहीं करते, वो शुक्र करते हैं या नहीं करते, वो क़नात करते हैं या नहीं करते। चूँकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं उसे बढ़ा दूंगा। So when the enlargement and limitation of the provision, Allah has defined responsibilities for the rich and poor both. So those who have enriched resources of income and those who have limited resources of income are defined or are given different responsibilities and duties. For not discharging their responsibilities, what Allah says that He will change the status of man. यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ पर वो लोग जिन्हें रिस्क बहुत वसी दिया है, उनके रिस्क में कुशादगी है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, अगर वो उन जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करते तो अल्लाह तबारक व ताला का जो कानून फितरत है, जो यूनिवर्सल लॉ है, वो एक्शन में आएगा। और वो एक्शन में ऐसे आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला उसे गुर्बत की तरफ लौटा देंगे। लेकिन इसको कंपेयर करते हुए अगर हम एक गरीब को देखें जो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करता है, सब्र से काम लेता है और क़नात करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दिन भी तब्दील कर देंगे। And this is what actually mentioned in this verse, in chapter number 2, the last verse, probably the second last verse, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, and such days we cause to alternate among men, कि ये दिनों रात हैं, ये अय्याम हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला लोगों में उलटते पलटते रहते हैं। In result, the poor becomes the richest and the richest becomes poor in the society.